کالی مرچ کے چند دانے پانی کے ساتھ کھانے سے جسمانی درد ختم ہو جاتا ہے۔ جوانی قائم رکھنے کے لیے دودھ میں اسبگول کا چھلکا ڈال کر پی لیں۔ نہار منہ ادرک کا رس پینے سے ہڈیاں مضبوط اور جریاں ختم ہوتی ہیں۔ ہاتھ پاؤں اگر کالے ہو جائیں تو دال چینی اور لیمبو کا رس ملا کر لگائیں۔ زیادہ سونے والے لوگ جلدی موٹے ہو جاتے ہیں۔ معدے کی کمزوری کے لیے سابودانہ دودھ میں پکا کر کھائیں۔ بادام کا تیل جلد کے مردہ خلیے ختم کرتا ہے، کیل مہا سے دور کرتا ہے اور ہونٹوں کی خشکی ختم کر دیتا ہے۔ السر کے زخم دور کرنے کے لیے صبح نہار منہ 2-3 کھجور کھا کر ٹھنڈا پانی پی لیں۔ کمزور معدے والے افراد کو کیلا نہیں کھانا چاہیے۔ جوڑوں اور ٹانگوں کے درد کے لیے بھنی ہوئی ادرک کھائیں۔ زیرہ جسمانی کمزوری اور خون کی کمی کو دور کر دیتا ہے۔ بار بار پیشاب آنے کی صورت میں ہرڈ کا مربع لازمی استعمال کریں۔ روزانہ کھیرے کا استعمال سانس کی بیماری سے آپ کو بچاتا ہے۔ پیاز کا رس بالوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ ٹانگوں میں اگر درد اکثر پانی کی کمی کی علامت ہو سکتا ہے۔ خواتین کا موٹاپا ان کی خوبصورتی میں رکاوٹ بنتا ہے۔ 2 سے 3 لہسن کے جو لیمبو کے پانی کے ساتھ کھانے سے آپ کا وزن بڑی تیزی سے کم ہوتا ہے۔ امرود کے مسلسل استعمال سے رات کو منہ میں پانی آنے کی شکایت ختم ہو جاتی ہے۔ زیادہ دیر پیشاب روکنے سے گردوں کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ چھینک کو روکنے سے مردانہ کمزوری پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر خواب کے اندر میٹھا پھل دیکھو خوبصورت ہونے کی علامت ہے۔ لیمبو پانی پینے سے پیٹ کی چربی تیزی سے کم ہوتی ہے۔ طوطے کی آواز سننے سے قوت سماعت بڑھتی ہے۔ درختوں اور پودوں کے پاس زیادہ وقت رہنے سے جسم کی جلد جلدی بوڑھی نہیں ہوتی۔ جلد اپنا مسئلہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے سے آدھی زیادہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ دودھ میں زیتون کا تیل ڈال کر پینے سے جلد نکھر جاتی ہے۔ کلونجی کو پیس کر دودھ میں ہلکا سا گرم کریں اور رات کو سونے سے قبل چہرے کی مالش کریں۔ صبح اٹھ کر اچھے صابن سے چہرے کو دھو لیں۔ چہرے کے سیاہ رنگ نکھر جائیں گے۔ ٹھنڈا پانی ہاضمے میں رکاوٹ بنتا ہے، جس کی وجہ سے معدے کو ہضم کرنے میں زیادہ مشقت کرنا پڑتی ہے۔ ٹھنڈا پانی گلے کے لیے بھی نقصان دہ ہے، یہ دل کی دھڑکن کی روانگی بھی متاثر کرتا ہے۔ جسم میں خون کی کمی دور کرنے کے لیے صبح نہار منہ ایک عمدہ پکا ہوا آڑو چبا کر کھا لیں۔ نصف گھنٹے کے بعد 1 گلاس دودھ پی لیں۔ کچھ عرصے کے بعد چہرے پر سرخی اور لالگی جھلکنے لگے گی۔ الائچی والے چائے پینے سے دانت کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے سے رزق کے اندر اللہ برکت فرماتا ہے۔ ناشتے میں زیادہ میٹھے کے استعمال سے آپ کے دانت جلدی گرنے لگتے ہیں۔ جو زیادہ تیز چلتے ہیں وہ اپنے گھر میں زیادہ محنتی ہوتی ہے۔ اگر سانس لیتے وقت درد محسوس ہو تو یہ پتے میں پتھری کی علامت ہو سکتا ہے۔ مولی کے پتوں کا رس نکال کر پینے سے جرثومہ کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ سفر پر روانہ ہونے سے پہلے ٹماٹر اور پیاز کاٹ کر کھا لیں، کولیسٹرول بڑی تیزی سے کم ہو جائے گا۔ گھر میں تتر اور بٹیر پالنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ جس گھر میں شہد کی مکھی اپنا گھر بنا لے، اس گھر میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے۔ امرود کھا کر دودھ پینے سے نقصان ہوتا ہے۔ کھانے والی چیز کھڑے ہو کر مت کھائیں، اس سے دل کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اگر ہر وقت آپ کا جسم ٹھنڈا رہتا ہے تو جان لو تمہارے اندر خون کی کمی ہے۔ جو کدو کا سالن بنا کر کھاتے ہیں اسے کبھی فالج کی بیماری نہیں ہوتی۔ صبح کے وقت لہسن کو اپنی زبان پر رکھ لو، زبان پر چھالے نہیں نکلیں گے۔ صبح کے وقت سبزہ دیکھنے سے آپ کی نظر تیز رہتی ہے۔ صبح کو آدھا گھنٹہ پیدل چلنے سے معدے کی بیماری نہیں ہوتی۔ کھانا کھاتے وقت کسی کی برائی کرنے سے کھانے سے برکت اڑ جاتی ہے۔ نیم کا رس پینے سے آپ بوڑھے نہیں ہوں گے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے گھٹنوں کے درد کی شکایت ہو سکتی ہے۔ دھوئیں میں کام کرنے والی عورتوں کی جلد بہت جلدی لٹک جاتی ہے۔ جن لوگوں کو بھوک نہ لگتی ہو کھانے کے بعد 1 امرود کھا لیں۔ چاکلیٹ اور کولڈ ڈرنک سے خود کو دور رکھیں، اس سے یورین میں تکلیف ہو سکتی ہے۔ روزانہ 1 انجیر کھانے سے آپ کا بلڈ پریشر کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک آنکھ بند کر کے سبق یاد کرنے سے سبق جلدی یاد ہو جاتا ہے۔ شہد، دوسرا شکر اور تیسرا کھجور۔ زبان کو کڑوی لگنے لگ جائے تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری موت قریب ہے۔ عورتوں کے پیٹ پر بچہ ہونے کے بعد نشانات پڑ جاتے ہیں۔ زیتون کی تیل کی مالش کرنے سے یہ نشان ختم ہو جاتے ہیں۔ بوڑھے لوگوں کی دعا لینے سے زندگی میں آپ کو بہت ساری کامیابیاں ملتی ہیں۔ ناریل کا خالص تیل چہرے پر لگانے سے چہرے پہ داغ دھبے اور سیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کھڑے ہو کر یا لیٹ کر پانی پینے سے آپ جسمانی کمزور ہو جاتے ہیں۔ پیٹ میں درد ہے تو الٹا لیٹنے سے آرام آ جاتا ہے۔ زیادہ غصہ کرنے والے افراد کشمش کھائیں۔ کسی بھی چیز کو غور سے روزانہ دیکھنے سے آپ کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے وہ کھجوریں استعمال کریں۔ کھجوریں کھانے سے آپ کی ہڈیاں
मजबूत होती हैं। ज़्यादा पानी पीने से गुर्दे साफ रहते हैं, इसलिए पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। घर में पीले रंग की लाइट लगाने से नज़र कमज़ोर हो जाती है, इसलिए सफ़ेद रोशनी का इस्तेमाल करें। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ नमक का इस्तेमाल रोक दें और ज़्यादा केले खाएं, क्योंकि केले में पोटाशियम है जो नमक के असरात को कम करके आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर देता है। प्याज और चिकन को पानी में उबाल कर इसका सूप पीने से वज़न बहुत जल्द कम हो जाता है। पेट भर कर खाने वाला अफराद को लालाज गैस्ट्रो की बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। खून की कमी को दूर करने के लिए बकरे की कलेजी पर काला नमक लगाकर खाएं, इंशाल्लाह खून की कमी दूर हो जाएगी। सोने के बाद नींद और सुस्ती महसूस हो तो ये दिमाग की कमज़ोरी की अलामत है। देसी घी के इस्तेमाल से आपका जिस्म ताकतवर और मजबूत होता है और जिस्मानी दर्द भी ख़त्म हो जाता है। जो मर्द ख़वातीन अपने चेहरे को खूबसूरत बनाना चाहती हैं वो चेहरे पर टमाटर का रस लगाएं, इससे चेहरा खूबसूरत होकर निखर जाएगा। जिस घर में बकरियां जुड़वा बच्चे दें वहाँ रिज़्क़ की कभी कमी। दुनिया के आधे से ज़्यादा लोग ज़िंदगी जीने की उम्मीद और अपनी कीमती ख्वाहिश को इसलिए छोड़ देते हैं कि लोग क्या कहेंगे। घर में हफ्ते में एक दिन मछली पकाकर खाने से आप बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। कोई भी अहम फैसला करना हो तो शाम 5 से 7 बजे के दरमियान का वक्त बेहतरीन है, क्योंकि इस वक्त दिमाग सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। जब आप मुस्कुराते हैं तो आपके जिस्म में तवानाई कई गुना बढ़ जाती है। कान में खारिश यादाश्त की कमज़ोरी की अलामत है। बालों की खुश्की दूर करने के लिए एलोवेरा को पानी में मिलाकर अपना सर को धो लें। कलौंजी का तेल दूध में डालकर पीने से आपकी थकन और सुस्ती खत्म हो जाती है। मुंह का ज़ैका कड़वा हो तो वफ़के वफ़के से इलायची चबाते रहें। माश की दाल के इस्तेमाल करने से सफ़ेद दाग ख़त्म हो जाते हैं। रात के वक्त ज़्यादा चावल खाने से पेट की चर्बी बढ़ती है। शाम के बाद चावल बिल्कुल ना खाएं। दांतों पर ठंडा गर्म लगे तो नमक वाले पानी से गरारे करें। नहाने से पहले पेशाब कर लेने से आपकी सेहत बरकरार रहती है। ज़्यादा प्याज खाने से चेहरे पर झुर्रियाँ आ सकती हैं। रंग साफ करना है तो रात को चेहरे पर दही लगाकर सो जाएं। तजावियत से बचने के लिए थोड़ा खाना खाओ, ज़्यादा ना खाओ। तली हुई चीज़ें इस्तेमाल करने से बदहज़मी हो जाए तो अजवाइन इस्तेमाल करने से बदहज़मी ख़त्म हो जाती है। तेज़ ठंडे पानी के इस्तेमाल से आपके बाल जड़ने लग जाते हैं। खाली पेट नहाओ, जिस्म गर्मी से बच जाएगा। रात के वक्त ठंडे पानी का इस्तेमाल हरगज़ नहीं करना चाहिए, ये घुटनों में दर्द की वजह बनता है। ज़्यादा खाने वाला बंदा हमेशा बीमारियों की ज़द में रहता है। जो बंदा मुसीबत में घबरा जाता है वो कभी मुसीबत से आज़ाद नहीं हो सकता, उसमें उसकी मुसीबत में कमी आने की बजाय बढ़ती है। जो बंदा तालीम हासिल करने की मुसीबत को बर्दाश्त नहीं करता वो कभी भी बड़ा आदमी नहीं बन सकता, हमेशा छोटे का छोटा रह जाता है। नहाने से कबल एक केला खाने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। दुरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत फरमाता है। रोज़ाना नहार मुँह अजवा खजूर दूध के साथ खाने से आपका चेहरा हमेशा साफ रहता है। मछली खाने से इंसान की जिल्द चमकदार रहती है। नहाने से पहले ज़ीरा और सौंफ खाओ, चर्बी तेज़ी से कम होगी। हल्दी जिस्म के दर्द को कम करती है। रोज़ कड़वा तेल सर पर लगाने से सर की जगहें मर जाती हैं। अदरक इस्तेमाल करने वाला बंदा ज़िंदगी भर बीमार नहीं होता। अचानक बुखार हो जाए, मेथी का पानी पीने से बुखार फौरी तौर पर उतर जाएगा। ज़्यादा अंडे खाने से चेहरे पर छाइयाँ पड़ जाती हैं। गंदम की खुशबू सूंघने से एलर्जी ख़त्म हो जाती है। जिन्हें भूख ना लगती हो वो नहार मुँह खीरा खाएं, भूख खुलकर लगेगी। जिन्हें सांस फूलने की शिकायत है वो आड़ू ज़्यादा खाएं। आलू बुखारा हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए बहुत मुफीद है। रोज़ाना कलाम पाक की तिलावत से आपकी नज़र तेज़ हो जाती है। टूटी हुई प्लेट या बर्तन में खाना खाने से नहुसत आती है, इससे गुरेज करें। बकरे का दिल पका कर खाने से दिल के दर्द में आराम मिलता है। बाल गिरने की शिकायत हो तो पान के पत्ते हफ्ते में 2 बार सर पर मसलें, बाल गिरना रुक जाएंगे। गुड़ खाने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता और खाना भी जल्दी हजम हो जाता है। ज़्यादा पेशाब आने की सूरत है तो भुने हुए चने एक मुट्ठी खाकर थोड़ा सा गुड़ खा लें, मसला ख़त्म हो जाएगा। 0 साल बालों में खुश्की दूर करने के लिए एलोवेरा को पानी में घोलकर लगाएं। नज़र बेहतर करने के लिए शकरकंदी नहायत मुफीद है, ख़ासकर धुंधला नज़र आने वालों के लिए। शहद और चीनी मिलाकर चेहरे पर लगाने से बेहतरीन मास्क बनता है। आहिस्ता आहिस्ता खाने से वज़न कम होता है। तेज़ी से खाने से पेट फूलता है। जिस जगह से खून निकलता है वहाँ चाय की पत्ती डाल कर दबा दें, खून निकलना बंद हो जाएगा। चाय और कोल्ड ड्रिंक छोड़ने से मैदे के मसाइल आधे से ज़्यादा खुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं। मैदे के मसाइल के लिए अंगूर बहुत
खांसी के लिए रोजाना नहार मुंह 3 ग्राम खुशकाश खाएं। सोने से कबल नीम गर्म पानी पीने से डिप्रेशन और बेकाबी खत्म हो जाती है। अनार का जूस पीने से पेट की चर्बी गलने लगती है और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होता है। अगर कान में पानी चला जाए तो सफ़ेद प्याज का रस डालें, दर्द नहीं होगा। नहार मुंह कच्चा केला खाने से वज़न में कमी आती है। ब्लड प्रेशर कम करना है तो चुकंदर खाने से इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। जिस घर में काली बकरी मौजूद हो वो घर बदनज़री से महफूज रहता है। अगर बाएं करवट सोते हुए डरावने ख्वाब आएँ तो ये घर में जादू की अलामत है। ख्वाब में सब्जियां देखना बीमारी से शिफा पाने और दुखों से निजात मिलने की निशानी है। सुबह सवेरे उठकर सब चीज़ों को देखने से आपकी नज़र तेज़ हो जाती है। नापाकी की हालत में खाना पकाने से घर में गुर्बत आती है। अगर छोटी आंत में मसला पैदा हो जाए तो ठंडे मशरूबात से ग्रेज़ करें। जली हुई जगह सरसों का तेल लगाने से छाले नहीं पड़ते। रात को वॉशरूम जाकर फारग होकर सोना चाहिए, इससे गुर्दों की तकलीफ नहीं होती। हर्ड्स एक ऐसा मरबा है, खाने से पेशाब की तकलीफ और दूर हो जाती है। जिन औरतों की स्किन ढीली होती है उनको रोज़ाना वाटर का इस्तेमाल करना चाहिए, इससे उनकी स्किन को अच्छा मॉइस्चराइज़र मिलेगा जिससे उनकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी। जो लोग चाहते हैं कि उनका चेहरा तरोताज़ा और फ्रेश नज़र आए वो टमाटर का रस चेहरे पर लगाएं। बैंगन का पराठा बनाकर खाने से खून की कमी दूर होती है। दही खाने से डिप्रेशन और ज़हनी दबाव से छुटकारा मिलता है। ठंडी चीज़ें खाने से बंदा जल्दी बूढ़ा हो जाता है और नीम गर्म पानी पीने से दांत मजबूत होते हैं। दूध में सेब का रस शामिल करके पीने से आपका चेहरा निखर जाता है। दालचीनी की चाय बनाकर पीने से पेट की रसौली ख़त्म होती है। ठंडे कमरे में सोने से आपका वज़न कम होने में मदद मिलती है। अगर बदन में सूजन का कोई भी मसला हो तो लौकी का सालन बनाकर खा लो, इससे बदन की सूजन में आराम मिलता है। जिन लोगों के चेहरे पर ऑयल रहता है उसको दूर करने के लिए चावलों वाले पानी से अपने चेहरे को धो लें। जो औरतें वज़न कम करने की ख्वाहिशमंद हैं सिर्फ 3 चीज़ें इस्तेमाल कर लें। कलवंजी 250 ग्राम, काला ज़ीरा 250 ग्राम, गंधक डंडा इनको पीस कर महफूज कर लें। सुबह शाम 2 ग्राम नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें। बड़े हुए पेट का खात्मा करके अजाफी चर्बी ख़त्म करके शुगर कंट्रोल लेके आएगा। चिकनाई वाली चीज़ों से परहेज़ करें और सुबह की सैर मामूल बना लें। बगैर चीनी के चाय पीने से दिमाग तेज़ होता है और मोटापे में कमी आती है। मोटापे के खात्मे के लिए 2 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच अजवाइन और 2 चम्मच ज़ीरा भून कर पीस लें और खाने के बाद आधा चम्मच लें। वज़न बहुत तेज़ी से कम होगा इंशाल्लाह। प्याज के साथ रोटी खाने से पड़ा हुआ पेट अंदर चला जाता है। हरी मिर्च के धुनी से सांस की बीमारी ख़त्म होती है। खीरे का जूस पीने से शुगर लेवल कम हो जाता है। सुबह के वक्त नीम गर्म पानी पीने से उनमें इजाफा होता है। जिस घर में ज़्यादा मुसीबतें हों लहसुन पर थोड़ा सा नमक लगाकर खाने से पेट के दर्द में आराम मिलता है। हाथ से कपड़े धोने से डिप्रेशन दूर होता है और आपका वजन कम होता है। इसबगोल का छिलका लगातार नहीं खाना चाहिए, जिस्म के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है, बल्कि एक दिन छोड़कर या कभी कभार ही खाना चाहिए। टूथपेस्ट छालों पर लगाने से छाले जल्दी ठीक हो जाते हैं। नींबू के छिलके अगर सब्जियाँ उबालने वाले पानी में डाल दिए जाएँ तो उनकी रंगत खुशनुमा रहती है। पुदीने के पत्ते उबालकर इसका पानी रोज़ाना पीने से चेहरे की रंगत निखर जाती है। नाजरीन, हरी मिर्चें सेहत का खजाना है। हरी मिर्चें कैलोरीज को कम करने में मुफीद है। खाने के बाद एक केला खाने से आपके मैदे को तक़वियत मिलती है। गर्म मजाज लोगों की कुफ्तेबा को मजबूत करता है। रात को सोते वक्त मिल्क शेक नहीं पीना चाहिए क्योंकि इससे ये पूरी तरह हजम नहीं होता। अमरूद की नरम और नाजुक पत्तियाँ चुबाने से मुँह के छाले ठीक हो जाते हैं। दही के साथ इमली नहीं खानी चाहिए और दही के साथ दूध भी नहीं पीना चाहिए। भुने हुए चने खाने से खांसी से निजात मिलती है। मच्छरों को ओ ब्लड ग्रुप पीना पसंद होता है। केला कैंसर से बचाव के लिए मुफीद है। तुम्हारी सलामती इसी में है कि अपने मुंह को ज़्यादा बंद रखो, क्योंकि जब तक एक मछली अपना मुंह बंद रखती है वो कांटे की गिरफ्त में नहीं आती। बदन को खूबसूरत करने के लिए सुबह सवेरे उठकर 10 मिनट तक पैदल सहल में चहलकदमी करें और लंबे लंबे सांस लें। मैदे की तजाबियत ख़त्म करने के लिए अपनी खुराक में अदरक ज़रूर शामिल करें, क्योंकि यह हाजमे के लिए बेहतरीन है। दवाई के साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए जो भी दवा खाएं इस पर पहले 12 दफ़ा बिस्मिल्लाह, 12 दफ़ा कोई सा भी दुरूद पढ़कर दम करके दवाई खाएं। इंशाअल्लाह नुकसान नहीं होगा। मैदे में गैस बहुत ज़्यादा बनती है तो पेट में मरोड़ है तो पुदीने का कावा बनाकर इसमें 2 चम्मच शहद मिलाकर पिएँ और ऐसा पीने से ये मसला हल हो जाएगा। नमाज अंधेरे में पढ़ना गमों से खुशी
پانے کا ذریعہ ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے کھانا ہمیشہ آہستہ آہستہ چبا کر کھائیں، چینی کم کھائیں، کھانے کے بعد پانی نہ پئیں۔ ناظرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرے اور خوب اچھی طرح وضو کرے اس کی خطائیں اس کے جسم سے نکل جاتی ہیں، حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی۔ صبح سورج نکلنے سے قبل ہاتھ منہ دھو کر ایک چٹکی کچے چاول پھانک لینے سے آپ کا جگر مضبوط ہوتا ہے اور پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ 2 چمچ ایلو ویرا جیل کو گرم پانی میں ڈالیں اور چہرے پر اس کی بھاپ لیں؟ اس سے آپ کے جلد سے کیل، مہاسے اور سیاہیاں ختم ہو جائیں گی اور آپ کی جلد نرم ملائم ہو جائے گی۔ پانی میں سنگترے کے بیج ڈال کر پی لو، پیٹ کی چربی 6 دن میں پانی کے ساتھ انشاءاللہ بہہ جائے گی۔